Now continuing the same from where we left in the last class, areas, heading towards the very first example of NCERT. You are not supposed to open your book. आपने अपनी बुक को ओपन नहीं करना है. This is page number 158. An example first. In this example, it is given that A, B, C, D is a parallelogram. E, F, C, D given है ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle and AL is perpendicular to DC. AL is perpendicular to DC, ये given है, right? First, area of ABCD is equal to area of EFCD, ये prove करना है. And second, area of ABCD is DC into AL. I will give you a minute to think about the answer and please reciprocate the answer to me. Okay, you got it? Okay. आदित्य एक्सप्लेन कैसे करेंगे. फर्स्ट का आंसर क्या होगा? So we know that the area of rectangle EFCD is equal to the area of triangle EDA plus the area of trapezium ADC. No, ऐसा कुछ नहीं कहना. Anyway, good try. The answer of So we know that every rectangle is a parallelogram, therefore area of parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in areas. By ABCD is a parallelogram, right? And at the same time we have EFCD is rectangle and rectangle. Before being a rectangle, it is a parallelogram, and hence the parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in areas. The statement itself becomes the answer of this. बस इतना आपने ये लिखना है कि EFCD, right, is also a parallelogram as well as a rectangle, and hence we can state everything, right? What about this? What about this part? Be bold in the class. Try to manipulate the answer in your own way. Though the answer may be wrong, लेकिन बोलना सीखो. हाँ काव्या. नो, सेकंड पार्ट के लिए वो नहीं होगा. आगे तो मालूम है. Sorry. Parallelogram is equal to base into height. So Parallelogram is base into height. That's there. But sir, DC is the base and AL is the height. आंसर जो लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे? So we know that the area of the rectangle and the parallelogram are the same. And so we also know that as the both lines are parallel, so any all lines perpendicular to them are equal. So ED equals to AL, and so as the area of both are equal, so and we know that the area of rectangle is length into breadth. So we can DC. जो आपने कहा है वो सीधा लिखो. As EFCD is a rectangle or not? Rectangle का एरिया क्या होता है? EFCD is nothing but DC into CF. Length into breadth, we know it.
and that in turn is DC into CF is equal to what? AL, being the opposite side of the rectangle. So this CF is replaced as AL, and this AL is acting as an altitude onto this parallelogram ABCD, and hence it becomes the formula for the parallelogram, that the area of the parallelogram is the product of the base one side, product of one side and the corresponding altitude falling onto it, right? हम जानते हैं ना पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, हमने 7th 8th में भी किया होगा. इट्स नथिंग बट वन साइड इज मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर. पैरेललोग्राम का एरिया तो यही होता है, यहाँ जस्टिफाई भी हो गया. दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द साइड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड फॉलिंग ऑन टू इट. डीसी के ऊपर ही तो आगे एल्टीट्यूड गिर रहा है, राइट? क्लियर हो गया ना? द होल ऑब्जेक्टिव इज, एज फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, is just to verify whether you are really applicable to put up the mean theorem or not. आपने अप्लाई कर दिया ना, क्या थी mean theorem इसके अंदर? हटाऊं इसे? Can I have this? Now the question is, prove that the area of the triangle is the half of the area of parallelogram. Area of the parallelogram, that's it. Parallelogram कुछ भी ले लो. If a triangle, condition है इसके अंदर जरूर, मैंने क्वेश्चन पूरा डिक्टेट नहीं किया है. The condition states that if the triangle and the parallelogram are having the common base, if the triangle and parallelogram are having the common base, lying between the same parallels, right? Triangle and parallelogram are having the common base lying between the same parallel, then the area of the triangle must be half the area of parallelogram. ये बात प्रूव करनी है. कहने का मतलब मैं फिगर से क्लियर कर देता हूँ. ये मान लिया पैरेललोग्राम है, और ये ट्राइंगल है. The side AB is produced to P and D and P are joined. The question is, prove that the area of triangle PDC is half of the area of parallelogram ABCD. Who will dictate me the answer? हाँ. We will join AC and the nature of the AC should be Parallel to PD. excellent answer, very good बेटा, fine, बिल्कुल ठीक कहा आपने. join AC in a way that it should be parallel with what? PD. इससे एडवांटेज क्या होगा? It will be a parallel. Parallel on the same base, line between same parallels are equal. इससे मेन एडवांटेज क्या होगा? PADC will be parallel. yes, ठीक है ना? See, PA is already parallel with DC given. AC is parallel with PD by construction, and hence that leads to the formation of what? That leads to the formation of a parallelogram, right? ये triangle. Figure clear है? So the figure should be made in such a way that this should also and this one also, both should represent parallelogram, right? ऐसा करते क्या एडवांटेज हुआ, आगे कौन बताएगा? Who will state me the answer? Sir, the area of parallelogram PADC will be equal to parallelogram ABCD. Yes, दोनों के एरिया सेम है because they lie on the same base and between the. Who was absent in the last class? Everybody was present, na? Then state. हाँ. Do you know the answer? Sir, we will divide both by 2 on both the sides, PACD and ABCD. उससे क्या होगा? Sir, PDC, triangle PDC is half of the PACD. फिर Sir, then दोनों तरफ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, one side only. क्योंकि अगर आपने एक को, हाँ ऑलमोस्ट सही है तुम्हारा आंसर. देखो, the moment it is done, then we know that area of
PDCA must be equal to the area of, right? ABCD, हम इसको सिंक्रोनाइज लिखे तो ये भी कह सकते हैं PACD is equal to the area of ABCD. इसका रीजन लिख देना, right? Now PC acts as a diagonal, and diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two triangles which are equal in areas, right? So area of PDC is equal to area of PAC. The sum of these two is the area of this, and hence we can say that this is directly written as half of PACD. क्या ये बात क्लियर है? ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्या आप बिल्कुल ओपनली बताओ ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है यहाँ? किसी को डाउट है तो शुड आई एलॉबरेट द आंसर ऑफ दिस? एब्सोल्युटली बोल बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, तो एरिया ऑफ पीडीसी इज दिस, रीजन लिख देना, राइट? द डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स व्हिच आर इक्वल इन एरिया। अब किसका एरिया किसके बराबर है? तो सीधा सा आंसर आ गया नहीं? Is that clear? So it completes the answer for this question also, right? तो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, जिसी के बिहाफ पर हम सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये पैरेललोग्राम द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज, ट्रायंगल्स इन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर आल्सो इक्वल इन एरियाज, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स इक्वल इन एरियाज। इज दैट क्लियर? एंड एट द सेम टाइम फाइनली that the triangle and the parallelogram which are on the same base and between the same parallels, in such condition the area of the triangle would always be half of the area of parallelogram, right? इसी के बेस पर हम करेंगे। अगर आप एक मिनट NCERT को ओपन करें, come on to page number 155. Do you have NCERT right now? पेज नंबर 155 एक्सरसाइज 9.1 करने की जरूरत है। नाउ एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 158 में पहला और दूसरा एग्जाम्पल हो गया ना? नाउ गेट मी द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 159 फर्स्ट क्वेश्चन। This is exercise. Those who are attending the class online should open their NCERT and switch on to page number 159. Try to get the answer without speaking to one another. Fine AD. Who is not confident? Anybody who is having the doubt of getting the answer of this question, please raise your hand. We are here to discuss the answer. कितनों से निकल गया? आदित्य आ गया आंसर? हाँ, गुड। आदित्य कैसे करेंगे बता? So you know that AE is perpendicular to DC, so the height would be same even if it falls on AB. So and you know that the area of a parallelogram is base into height, and the base here is AB and height AE is 8. देखो ठीक, AE is 8 cm. हाँ, And this AB is 16. And the base is 16 centimeter, which results in the area equal to 128 centimeters square. And हाँ. you also know that,
also we know that AD into CF is also equal to 128 centimeters, as CF is also the height and AD is another base. करेक्ट करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक कहा, एब्सोल्युटली राइट. See, just look at the figure. The objective of giving this question is to verify whether you are really aware about the formula of the area of parallelogram or not. इस क्वेश्चन को देने का मकसद क्या था? ये देखना कि क्या आपको पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला मालूम है या नहीं. अगर मालूम है तो इंप्लीमेंट करना आता है या नहीं. कैसे? इस फिगर को ध्यान से देखें, जिसको भी थोड़ा डाउट है, ये पैरेललोग्राम है या नहीं. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम है, परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर गिवन है. और आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड DC, is that clear, into the perpendicular falling onto it, right or not. तो DC पे परपेंडिकुलर तो यही आ रहा है, लेकिन DC की लेंथ हमारे पास नहीं है. लेंथ हमारे पास किसकी है? AB की. और हम जानते हैं DC और AB पैरेललोग्राम में क्या होगा? इक्वल होगा. तो मैं यहां पर DC को रिप्लेस किससे करूंगा? AB से. इज दैट क्लियर? इस पैरेललोग्राम का एरिया हम DC मल्टीप्लाइड विथ AE से ही नहीं निकाल सकते. हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहां एक और परपेंडिकुलर है CF. This CF falls onto the another side AD, and hence the area of the same parallelogram can also be estimated as AD into CF, right or not? AD into CF, that is nothing but the product of one side and the corresponding perpendicular. तो एक ही फिगर के दो तरीके से एरिया निकल गए, DC इंटू AE, AD इंटू CF. और अब देख लो क्या क्या गिवन है. AB कितना गिवन है? 16. AE कितना गिवन है? 8. AD हमें निकालना है, राइट. और CF कितना गिवन है? 10. तो AD कितना आ गया? 12.8 इज द आंसर. समझ में आ गया? ये सोचा करो कि क्वेश्चन किस मकसद से दिया गया था. इस क्वेश्चन को देने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जानना कि क्या आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम है, क्या होता है उसका फॉर्मूला. अगर मालूम है तो उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. क्लियर है? आर यू एब्सोल्युटली इन द क्लास ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. एसी ऑन नहीं किया. एवरीबडी ट्राई द क्वेश्चन सेकंड ऑन योर ओन. इफ यू नो द आंसर, राइट द आंसर. क्या फिगर यही बनी है या नहीं आप लोगों की? नाउ आर यू ट्राइंग द आंसर? हाँ वंश, कैसे करेंगे? Sir, we will join EG, and we know that area of parallelogram ADGE and triangle EHG lie on the same base EG and between the same parallel lines AD and EG. Therefore, area of triangle EHG is going to have the area of parallel. खत्म आंसर. इज एब्सोल्युटली राइट. कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने? EG को ज्वाइन कर दिया. ऑब्वियस सी बात है, द मोमेंट EG इज ज्वाइन तो EG बिकम्स पैरेलल विद व्हाट? AD, राइट. सो जस्ट लुक एट दिस पार्ट ऑफ द फिगर, दिस पार्ट. अभी हमने इस क्वेश्चन से पहले ही एक क्वेश्चन छोड़कर किया था
कि triangle on the same base, parallelogram also having the same base between the same parallels, then the relation of the area states that the area of this triangle is half of the area of this parallelogram, right or not? So area of HEG is a half of AEGD. Similarly, area of FEG is half of EBCG. Add them on both the sides. Addition of these two results into this figure. Addition of these two results into this figure, hence the answer. Right? तो जिसको बिल्कुल समझ में आ गया वो अपने आंसर को खुद राइटिंग में कंप्लीट करें. जिसको थोड़ा भी डाउट है, 1% भी वो कुछ ना करें, वो यहां देखें. तो मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख रहा हूं, गिवन आप अपने आप लिख लेंगे. कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, ईजी को ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन है. Adding first and second on both the sides. The addition of these two results into this, and this one results into this, is the final answer. Please check the answer. Feel any kind of doubt? Sir, EG AD के parallel कैसे? Midpoints, right? तो obviously ये लाइन और ये लाइन automatically parallel नहीं हो गई, right? तो we have joined the midpoint of both these two sides, creating a line parallel to one side. अगर ये दोनों midpoints नहीं होते तब नहीं कह सकते थे हम. Actually what we did, we have divided this main parallelogram into two equal area parallelograms, right? अगर पूरे का एरिया 60 है तो इसका 30 होगा, इसका 30 होगा. यहां भी एप्लीकेबल होती है. देखो ये कॉमन बेस हो गया. पैरेललोग्राम on the same base between the same parallels are equal in areas, right? Can I rub this? अगले क्वेश्चन को ट्राई करो. हटाऊं इसे? It's a very cool exercise. Now switch on to question number 3 of the same exercise. हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्या उसी. कौन बताएगा इसका आंसर? आप नहीं, अभी नहीं. एनीबडी? हाँ अमन बेटा बताओ. फिगर यही बनी है या नहीं? हाँ बेटा बताओ. So as ABP is a triangle lying on the same base as of ABCD AB, so sir triangle ABP is half of parallelogram ABCD. So sir, and similarly BQC is also half of ABCD. अरे this triangle is half of ABCD. This triangle is also half of ABCD, and hence both are equal to one another. Clear? First rule lock. Clear है?
So this can be written as what? Area of ABCD. Reason must be mentioned. An area of BQC is what? Again area half of, obviously from first and second, right side same है तो left side भी same हो गई, खत्म आंसर है ना. इतना आसान क्वेश्चन है ना. अगले क्वेश्चन पे जाओ. फोर्थ क्वेश्चन. हाँ स्पीड बताओ. So we will take two midpoints of AD and BC respectively. There is no need to take the midpoint also. Just simply क्या करें? We can create a line parallel to AB passing through P. ये लिखना है. Construction. Make a line EF parallel with AB passing through P. Obviously this is also parallel with CD, right? तो होगा क्या इसका आंसर अब? APB is half of AEFB, clear? PDC is half of EDCF. Again add them on both the sides, results in the answer, right? और सेकंड पार्ट के लिए क्या करें? हाँ अर्नव. So we will draw another line XY parallel to AD passing through P. Right. So similarly, what we did in the first part, we will prove that ABD and B plus खत्म. BPD. Is right. The next is सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि APD is half of this और BPC is half of this. Again similarly adding them on both the sides resulting into the half of ABCD. Hence the answer. Right? The question seems to be very easy but at the same time very very important. ऐसे समझ के जाओ कि घर पर रिवीजन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. बस एक बार खाली लिख कर देखना है. नहीं समझ में आया? हाँ क्लियर है ना? तो APB is half of area of AEFB and area of PDC is half of area of EDCF. Is that clear? Now add them on both the sides. Now this is what? ABCD. So this entire left side is equal to half of area of ABCD. And this entire execution is done by considering EF parallel with AB. तो सिमिलरली हम करेंगे GH पैरेलल विद AD से और बिल्कुल ऐसे करते जाएंगे जैसे यहां लिखा है.
एंड हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको ए कह देंगे, जो यहां आएगा उसे बी कह देंगे, फ्रॉम ए एंड बी दिस इज आल्सो अचीव्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या सेकंड पार्ट क्लियर है? समझ में आ गया ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? राइट, गुड। Switch on the next question. Question number 5th. Everybody try to get the answer of question number 5th on your own. मार्कर नया, ब्लैक, ब्लैक भी और रेड, खासकर रेड है नया, तो ब्लैक हो तो वो भी दे। मुझे बता दो, मैं ले लूँगा। एक मिनट का। ये फिगर है, इसमें फर्स्ट प्रूव करना है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज एरिया ऑफ ए बी आर एस एंड एरिया ऑफ ए एक्स एस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। हो गया ये? हाँ, हाँ, कुछ है इस क्वेश्चन में? हाँ ओजस्वी, कैसे होगा आंसर इसका? Sir, the first part will be the theorem. थ्योरम इटसेल्फ। सेकंड, And the second part, AXS will be a triangle on the same base, एन इज इक्वल टू व्हाट? and then that parallelogram is equal to PSRQ. AXS is equal to half of what? Half of ASRP. Yes, and then we know that ASRB is equal to what? PS, hence the answer. बताओ, पांचों क्वेश्चन आसान थे या नहीं? इनफैक्ट जब पहला क्वेश्चन किया था मैंने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का, वहां से अगर हम शुरुआत करें तो सातों क्वेश्चन इजी है या नहीं? द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज टू राइट देम अगेन बिफोर स्लीपिंग, राइट? 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और स्मार्ट स्टडी की तरफ आप अप्रोच करोगे। क्लास पे सब समझ में आ रहा है ना? लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज डोंट डिस्कस, यूज योर ओन क्रिएटिविटी। डिस्कस करने से आपकी एनालिटिकल पावर डिफ्यूज हो जाएगी।
हु विल सजेस्ट मी द आंसर? फिगर तो यही होगी, 3 पार्ट्स, तीनों ट्राइंगल है, ठीक है. हाँ, जस्टिफाई करो. हाँ स्पीक. Sir, as we know that a triangle PAQ is lying on the same base of parallelogram PSRQ. तो इट इज इक्वल टू व्हाट? It is half of PSRQ. ठीक है, That's इससे why half of sheets will be in PAQ and 1/4 in PSA and 1/4 in नहीं 1/4. हाँ 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 1/4 in that and 1/4. ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर, वेरी गुड. दिस इज द, अगर सपोज उसने वीट को यहाँ पर ग्रो किया तो पल्सिस को यहाँ करेगा तो दोनों का अमाउंट इक्वल होगा, या यहाँ वीट को करेगा तो पल्सिस का यहाँ होगा. लेकिन इसको प्रैक्टिकली जस्टिफाई करना है. लिखेंगे कैसे इस बात को? ज्योमेट्रिकल एविडेंस क्या होगा इसका? हाँ, Sir, we know the triangle PAQ and parallelogram SQRSP lie on the same base PQ and between the रीजन मत दो, आगे बताओ. हाँ, so the area of triangle PAQ is half the area of ये तो मालूम है. आगे and if we subtract the area of triangle APQ from parallelogram SRPQ, we get the area of triangle SAP plus ठीक है, ठीक है, ARP. ठीक है. So we can do V in PAQ and other in and area of SAP plus ARP. See, we are concerned about this and this, right? तो area of PSA plus area of Q RA is equal to area of PQRS minus area of APQ. नहीं, क्लियर है जो मैंने लिखा है भाई? द सम ऑफ दीज टू इज नथिंग बट एंटायर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, राइट? So which is PQRS and what is area of APQ? Is half of area of again PQRS. अब PQRS minus half of PQRS becomes what? Half of PQRS. That means the sum of these two is half of exact field, and in that way we can say that either he will grow or she will grow wheat in first and third, pulses in the second only, or vice versa. Makes the answer of this question clear? Can I rub this? And hence in that way the exercise 9.2 is over. Heading towards the next exercise, exercise 9.3. NCERT, please close your books. The real question of this chapter, in fact, starts from now. Given है ABCD is a quadrilateral in which B is parallel with AC and B meets DC produced at E. To prove करना है area of ADE is equal to area of ABCD. ABCD. That's what we need to do. Who will give me the answer?
that the triangle, if we triangle ABC and triangle ACE lie the same way, lie between the same parallel lines BE and AC and the same common base, that is AC. Therefore, area of triangle ABC is equal to area of triangle ACE. And if we add area of triangle ADC on both the sides, Brilliant answer. Excellent answer. बिल्कुल सही है. The answer over right now. See, we'll be using the concept. कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं? यहाँ कोई पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा, तो वो वाला तो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा नहीं. लेकिन इस कंडीशन को अगर हम गिवन कंडीशन को ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा इसमें BE इज पैरेलल विद AC. अगर BE पैरेलल विद AC गिवन है तो कोई ना कोई इसका लॉजिक है, अदरवाइज से क्या जरूरत थी? वो BE तो कुछ BE को यहाँ भी कर सकता था. वो उसने BE पैरेलल विद AC करते ही और AE को ज्वाइन कराते ही और इसी तरीके से BC को ज्वाइन कराते ही हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सामने आती है दैट द ट्राइंगल ABC, इनफैक्ट द ट्राइंगल ACB and triangle ACE, ACB, ACE lie on the same base AC and between the same parallel AC and BE. Therefore, the area of ACB and area of ACE are equal. Right? That's what he said. Area of ACB is equal to area of ACE. Right? And then what he said, just followed by adding area of ADC on both the sides, दोनों तरफ. तो area of ACB plus area of ADC, area of ACE equals can be added with equals वाली बात है ना. This तो ADC and ACB, ADC ACB is what? क्या होगा? ट्रिपीजियम नहीं, ट्रिपीजियम क्यों कह रहे हो सर? क्वाड्रिलेटरल, सिंपली क्वाड्रिलेटरल. दिस प्लस दिस इज ABCD. राइट. और इसी तरीके से ACE एंड ADC that constitute what? Area of ADE, hence proved. समझ में आ गया? राइट. इस क्वेश्चन को एक तो इस तरीके से किया, एक दूसरा तरीका भी है जो आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं. मैं हमेशा कहता हूं कि जो पूछा जाता है वहीं से स्टार्ट करो. आप क्या पूछा गया है भाई? ADE. ADE. अगर आप ADE को ध्यान से देखें तो ADE itself contains two triangles ADC and ACE. भाई मुझे नहीं मालूम आगे ये कैसे हुआ है, मैं तो जो पूछा जा रहा है ना उस पर ध्यान दे रहा हूं. और मैं ये देख रहा हूं कि इस पूरी फिगर में ADE क्या है? व्हाट इज ADE? एरिया ऑफ ADE जो पूछा गया है मेरे हिसाब से वो क्या है? ADC प्लस ACE. राइट और नॉट? और ABCD क्या है? ABCD. ABCD is the sum of these two triangles. And area of ABCD is equal to area of ADC plus area of ACB. भाई बिल्कुल नील है, आपको यह भी नहीं मालूम कि गिवन कंडीशन को कैसे यूज करना है, तो कोई बात नहीं, वहां से आंसर स्टार्ट करने की कोशिश करो जहां से पूछा गया है. ADE को हमने देख लिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस क्वाड्रिलेटरल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और दोनों पार्ट्स को मैंने ऐसे लिख दिया. अब लिखते ही क्लियर हमारे पास अपने आप से क्रिएटिविटी हो रही है आंसर की. ये दोनों हिस्से तो सेम है, ये दोनों इक्वल होंगे ही, 100% इक्वल होंगे, तभी तो पूछा है. ये दोनों ऑलरेडी सेम है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों को सेम कर देना है. इन दोनों को सेम करने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन है? अब गिवन कंडीशन को देखो.
समझ में आया भाई? ये दोनों सेम, इन दोनों को सेम कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली सेम हो गए। और इन दोनों को सेम करने के लिए देखिए कैसे हो सकते हैं ये। यहां गिवन कंडीशन ने हमारी हेल्प की और गिवन कंडीशन से साफ हो गया, एकदम मेरे दिमाग में आया कि भाई बीई पैरेलल विद एसी का मतलब है ये दिया इसलिए कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों के एरियाज, यानी कि इन दोनों के एरियाज आपस में सेम है, राइट। एक तो आप इसे लिख सकते हो दिस इज 1, दिस इज 2, और फिर लिख सकते हो एरिया ऑफ ACE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। दिस इज थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इवेंचुअली दैट अराइजेस, राइट। फिर आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी अचीव दिस आंसर। This is also one of the way to give the answer. This kind of thinking arises when we have a very strong implementation of the concept. लेकिन हम बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के केस के अंदर आप मेथड को चूज करो, जो पूछा जाता है वहीं से स्टार्ट करो, राइट। और फिगर से आपको आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। खत्म है इसका आंसर, क्लियर? दैट्स इट। हटाऊं इसे। नाउ स्विच ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन of exercise 9.3. Open your NCERT. Those who are attending the class from their home should have NCERT, my class notes along with the MIQ with themselves. AD मीडियन है, E कोई पॉइंट है उसके ऊपर, प्रूव करना है एरिया ऑफ ABE इज एरिया ऑफ ACE। हाँ भाई, एक्सेप्ट दीज 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, सम अदर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई द आंसर। कोई थ्योरम लगनी है? एक है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरा इक्वल इन एरियाज, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरा आर इक्वल इन एरियाज, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। कौन सी थ्योरम यूज होगी? थर्ड यूज होगी या नहीं? मीडियन है, एकदम दिमाग में आना चाहिए कि यार ये मीडियन दिया है इसमें, तो कोई ऐसी थ्योरम जरूर है जो मीडियन से रिलेटेड है। और जैसी थ्योरम तुम्हें याद आई तो आंसर क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? आई वांट सम मोर हैंड्स। वी आर नॉट हियर टू गिव द आंसर टू यू, एवरी बुक इज हैविंग द आंसर, जस्ट पार्टिसिपेट इन द क्लास। हाँ काव्या, यू आर ट्राइंग द आंसर, बोलो। There is no need to do anything parallel. हाँ भाई, आर्यन, नो आइडिया। ऋषभ, बात ही खत्म। AD is a median. AD divides this triangle into 2 triangles, ADB, or we can say ABD equal to ACD। खत्म। एक बात तो आ गई, इसी बड़े ट्राइंगल में छोटे ट्राइंगल भी छुपा हुआ है। क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट? यस, हम तो करना तो वही है। नहीं, इक्वल्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स एंड द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। आप सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब इस बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटे ट्राइंगल भी गिवन है। एक तो ये ट्राइंगल है जिसमें AD मीडियन है, और एक ये ट्राइंगल है जिसमें ED मीडियन है। नहीं, इसके अंदर ABD इज इक्वल टू ACD, और छोटे वाले में
EBD इज इक्वल टू ECD। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये बच गया है नहीं, ऐसे इस बड़े में से छोटे को माइनस किया, आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? तो हम लिखेंगे इसके आंसर को, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। रीजन देना पड़ेगा बिकॉज AD इज द मीडियन। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये लिया हमने ट्राइंगल कौन सा? ABC। फिर हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? EBC। फिर हम लेंगे EBC और एरिया ऑफ व्हाट? EBD is equal to area of ECD. Same reason. This is first, this is second. Subtract second from first on both the sides. Area of ABD minus area of EBD is equal to area of ACD minus area of ECD. This minus this results into this. This minus this results into this. And hence area of ABE, area of ACE proved. Clear? Clear है या नहीं? मैथ से आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है कोई आसान इससे सब्जेक्ट? हिंदी भी टफ है इससे ज्यादा। हिंदी इज वेरी 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 टफ एज कंपेयर टू मैथ्स, खासकर कोर्स से हिंदी का देखो आप, यू विल कम टू नो गेटिंग इवन 75% इज ए वेरी टीडियस जॉब एंड गेटिंग 99-100% मैथ्स इज वेरी इजी। हटाऊं बस, द ओनली थिंग इज कि आपको बिल्कुल अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन को समझना है। गेट द लॉजिक एंड पुट द आंसर। आलसियों का सब्जेक्ट है ये, मेहनती लोगों का सब्जेक्ट नहीं है। मैं उल्टी बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है ना बात? आलसियों का क्यों है? क्योंकि जो आलस होगा जिसके अंदर, वो छोटे से छोटा रास्ता अपनाना चाहेगा। और मैथ्स के अंदर छोटा सा एक ही रास्ता है कि जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वहीं से आंसर की शुरुआत होती है और क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है। इसी बात की प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। जितनी ये बात मजबूत होती जाएगी उतना सब्जेक्ट आसान होता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालो, तुमसे निकल जाना चाहिए। अगला तो बिल्कुल ही आसान है। देखो, जिनसे अगर आंसर आ जाता है, आई वांट देम टू राइट द आंसर। प्लीज डू राइट द आंसर बिकॉज एवरीथिंग मस्ट बी प्रैक्टिस्ड इन राइटिंग. It's not the knowledge that is important for us. It's the speed, accuracy, precision also matters a lot. आंसर लिखने के बाद हाथ खड़ा करना. हाँ भाई, कौन बताएगा आंसर? वहीं देखो जहां से पूछा गया है, वहीं आंसर छुपा हुआ है. और मीडियन गिवन है. मजेदार बात यह है, और ई मिड पॉइंट गिवन है. इस बार ये गिवन है कि ई इज द मिड पॉइंट. हाँ, ब्रिलियंट आंसर, वेरी गुड आंसर. क्यों? हाँ हाँ, यस, योर आंसर इज करेक्ट. यू नो द आंसर. क्यों? यस, ठीक है ना. E is the median for AD. E is the median, sorry, E is the midpoint for AD. E midpoint है ना, तो E midpoint देने का मकसद ही ये था कि B should act as a median.
For triangle what? For triangle BDA. In this triangle BDA, PE acts as a median, and hence this is equal to this. The sum of these two make this, or the area of this is half of this, right? तो BED सबसे पहले जो पूछा गया वहीं देखते हैं हम. एरिया ऑफ, जो निकालना है बात की बात है. BED इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD. चलो छोटे से बड़े ट्राइंगल पर तो आए, राइट? अब हमें ABD को रिप्लेस किससे करना है? अब क्या करें? क्या ABD का और ABC का कोई रिश्ता है? राइट, AD इज द मीडियन. तो ABD इज व्हाट? खत्म आंसर. ठीक है ना? सो एरिया ऑफ BED इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC. आंसर आ गया ना? जिस दिन मैथ्स में रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटन प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, उस दिन तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग हो गया, उस दिन तुम्हारी फिजिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गई. बिकॉज मैथ्स एंड फिजिक्स आर रियल ब्रदर्स. दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. और जिसने IIT की प्रिपरेशन में जाना है उसको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. एक ही चीज, एक ही कथा को बार बार, अगर आप बार बार 6, 7, 10 दिन के बाद रिवाइज करोगे तो आपको 50,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. कर लोगे, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं होगी. ब्रेन ने एक बार एक आइडिया कैच किया, बात खत्म, उसकी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े. उस तरफ जाने की कोशिश करो. ऐसा नहीं कि आज इसको कर लिया, अब सर ने तो टेस्ट लेना है, बुखार हो गया, अगले दिन हमारा टेस्ट है, 3 टॉपिक आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं. लेने दो ना टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट लेने दो. मेरा आंसर फिर भी सही आएगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने वेरी फर्स्ट मोमेंट से हर क्वेश्चन को ध्यान से समझा है, उसकी अप्रोच को कैच किया है. तो उससे क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्ट आंसर्स आप दे पाओगे. अदरवाइज यू जस्ट एंटर इनटू द 11th क्लास. एक चैप्टर में 1000 क्वेश्चन है. जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज्यादा तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल डिटेल स्ट्रांग होगी. 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Show that the diagonals of a parallelogram divide it into triangles, 4 triangles of equal areas. क्या करें? Accept them. Tell me what should be done. नो नीड. कॉन्ग्रुएंसी बहुत पुरानी चीज हो गई. लेटेस्ट जो पढ़ा है उसे यूज करो. हाँ, Sir, as in triangle ADB and BCD, they both are equal in area. ADB, And हाँ, BCD are equal in areas. ADB and BCD. अच्छा, इससे क्या होगा? They both are equal, so they are half of the parallelogram. And we can do ABO and CBO equal as O acts as a median, BO acts as a median. वेरी गुड आंसर. ये अप्रोच कितनी अच्छी है, मैं यही चाहिए था मुझे. ही गॉट द अप्रोच. हम सबसे पहली बात ये, पैरेललोग्राम का फीचर ये कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. राइट. तो अगर आप ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल के अंदर देखें, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल. इस ट्राइंगल के अंदर ये लाइन में ये ओ मिड पॉइंट हो गया, तो AO क्या हो गया? मीडियन. और इस बड़े ट्राइंगल के अंदर मीडियन डिवाइड्स दिस बिगर ट्राइंगल इनटू 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, फर्स्ट एंड सेकंड. द एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल विद ट्राइंगल ADB. राइट और नॉट? अब आ जाओ इस ट्राइंगल के अंदर. इस ट्राइंगल के अंदर भी क्या है? ये
AC का मिड पॉइंट है, तो OD क्या हो गया? मीडियन। लिखना पड़ेगा ये सारा, लिख लोगे ना? अगर ये मीडियन है तो 1 and 3 आर आल्सो इक्वल। अब कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने यहां पर? ट्राइंगल ADC। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं DCB। DCB के अंदर ये क्या हुआ? मीडियन। तो 3 और 4 का भी एरिया आपस में इक्वल हो गया है नहीं? ABC से क्या मिला? 1 equal to 2, 2 equal to 3, 3 equal to 4. All the triangles are equal in terms of their respective areas. बात क्लियर है या नहीं? राइट? ये भी मीडियन, इस ट्राइंगल में ये मीडियन, इस ट्राइंगल में ये मीडियन, और इस ट्राइंगल में ये मीडियन। और मीडियन क्या करता है हमें मालूम है, राइट? इट कंप्लीट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट खींचते जाओ, आसान है ना? 4th क्वेश्चन निकालो। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस AB पर हैं। CD, if the line CD is bisected by AB at O, इसका क्या मतलब हुआ? AO भी मीडियन हो गया और BO भी मीडियन, यानी कि ये और ये इक्वल है, राइट? हाँ आर्यन, area of AOC is equal to area of AOD, area of COP is equal to area of BOD, and हाँ। adding on both the फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर ये क्या होगा? मीडियन। इस ट्राइंगल के अंदर 3 equal to 4, तो 1 equal to 2, 3 equal to 4। आ गया नहीं आंसर? इट्स वेरी नाइस टू सी दैट एक्सेप्ट सम स्टूडेंट्स, more and more students are now contributing in the class. Good, दोनों को ऐड कर दिया दोनों तरफ। 1 plus 3, 2 plus 4 ऐड हो गया ना? 1 plus 3 क्या होगा? 2 plus 4 क्या होगा? खत्म आंसर। यही तो था क्वेश्चन, यही था या नहीं? बेटे समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5th, से हम अगली क्लास में करेंगे। दैट्स इट।